बहुत ही ज़्यादा शांतमयी जो धरना चल रहा है वो कर रहे हैं, लेकिन ये हमको उकसा रहे हैं। हम तो उनको यही कहेंगे कि मान जाए तो अच्छा है। ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਲੇ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਯਾਨੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵੀ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਊਗੀ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਭਲਾ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਲੱਗ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਡਟੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। देश भर के किसान सिंगू बॉर्डर पर धरना दे रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। इसी सिलसिले में हमारे साथ आज ट्रैक्टर पे ट्रॉली के अंदर कुछ किसान मौजूद हैं। आज हम उनसे बात करेंगे, जानते हैं उनका क्या कहना है। सबसे पहले तो आप ये बताइए, आप कहाँ से हैं? हम मोगा जिले से हैं, पैंट कोकरी हेर ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ 15 किलोमीटर से। तो अब हम यहाँ से कहाँ जा रहे हैं? हम संगू बॉर्डर से जा रहे हैं, टिक्की बॉर्डर तो आए हैं। टिकरी बॉर्डर से आप आए हैं, सिंगू बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं। हाँ जी, उत्थे संगू बॉर्डर से जा रहे हैं। जो सरकार के बीच किसान संगठनों से वार्ता है 10वें दौर की, अगर उसके अंदर भी कोई नतीजा नहीं निकलता तो आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? हमारा ਇਉਂ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਨਾ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਿਆ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੇਡ ਕਰਾਂਗੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ, ਸਹਿਜ ਮਤੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲੂਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਨਾ ਕੋਈ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਡਟੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੋਦੀ ਬੈਠਾ ਵਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਸਮਝੌਤਾ ਛੇਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੂਗਾ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ 24 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। 24 ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦੁਆਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਹ ਜੋ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀਗੀ, ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਲੇ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਣੇ ਆ। तो मतलब आप ये चाहते हैं कि जब तक मोदी सरकार तीनों कानून वापस नहीं लेती तब तक आप वापस नहीं जाएंगे। लेकिन सरकार का ये कहना है कि हम 26 जनवरी को आपको परेड की अनुमति नहीं देंगे। उसके सिलसिले में आज किसानों की पुलिस वालों से भी वार्ता है। ਉਹ ਅਨੁਮਤੀ ਨਾ ਦੇਣਗੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 4 ਸਵੇਰੇ ਪਰੇਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਦਾਲੇ ਦਾਲੇ ਪਰੇਡ ਕਰਾਂਗੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ, ਕਰਾਂਗੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕੋਈ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਧੱਕਾ ਕਰੂਗੀ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇਖੇਗਾ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਆ, ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ 40-45, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਦੱਸਣਗੇ ਹੁਕਮ ਕਰਨਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਾਂਗੇ। हमारे साथ यहाँ पर और भी किसान बैठे हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। आप कहाँ से हैं? ਅਸੀਂ ਜੀ ਮੋਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਪਿੰਡ ਕੋਕਰੀ ਹੀਰਾਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ 26 ਤਰੀਕ ਦੇ ਆਏ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਧਰਨਾ ਚੱਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ 2 ਟਰਾਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਬੀਬੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਟਿੱਕੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਟਰੈਕਟਰ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੇਖਣ ਬਾਬਤ ਹੀ ਚੱਲੇ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਆ। ਯਾਨੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵੀ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਊਗੀ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਭਲਾ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਲੱਗ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਡਟੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ। तो मतलब आपका कहना है कि आप यहाँ से हिलोगे नहीं जब तक तीनों कानून वापस नहीं जाए। ਹਾਂਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਏਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਭਲਾ ਦੀ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜੇ। ਸਾਡਾ ਘਰੇ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਮੰਜੇ ਖੜੇ ਕਰੇ ਆਏ ਆ ਵੀ ਜੇ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਡਾਲਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਮੰਜੇ ਖੜੇ ਹੀ ਰਹਿਣ। लेकिन कुछ किसान संगठन, सरकार कह रही है कि कुछ किसान संगठन इन कानूनों का सपोर्ट कर रहे हैं, तो उस पर क्या कहेंगे? वो किसान संगठन कौन है? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਮਿਹਨਤੀ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬੰਦੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਹੀ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਡਟੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਆਏ ਆ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵਧੀਆ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰੌਲਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੂਨ ਵੀ ਮੰਗਣ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਖੂਨ ਵੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਪਾਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਚਾਹਣ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੂਨ ਵੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਆਪਦਾ। ਸਾਡਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਾਨ ਆ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ। कुछ नेता तो ये भी कह रहे हैं कि जो आंदोलन में जो किसान हैं उसके रूप में कोई आतंकवादी घुसे हुए हैं, इनको कहीं से फंडिंग मिल रही है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? आतंकवादी कोई नहीं गा, सारे किसानों ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। किसानों के पास इतना पैसा आ रहा है, इतना जो खाना पीना चल रहा है, उनके ऊपर भी उन लोगों का कहना है
कि इनको फंडिंग मिल रही है, बाहर से फंडिंग मिल रही है? ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ ਆਪਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ NRI ਵੀਰ ਆ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਘਰਾਂ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮਦਦ ਚਾਹਣ ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। तो आप जो ये ट्रैक्टर लेकर आ रहे हैं, ये आप कहाँ से लेकर आ रहे हैं? जी मेरा नाम गुरदीप सिंह है। हम मोगा जिला है हमारा पंजाब में और गांव हेरा है। हम टिकरी बॉर्डर से आज कुंडली बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं, तो वहाँ पर भी हमारे भाई जो इतने पिछले 2 महीने से डटे हुए हैं, तो हम उनका साथ देने वहाँ पे आज जा रहे हैं। जो सरकार के साथ वार्ता है किसान संगठनों की, अगर उसके अंदर कोई नतीजा नहीं निकलता तो आप लोगों का क्या कहना है? देखिए हम पिछले 2 महीने हो चले हैं यहाँ पे बैठे हुए। अगर नहीं निकलता तो हम यहीं पे डटे रहेंगे और जैसे हमारे जो किसान लीडर हैं वो जैसे भी कहेंगे हम उसको फॉलो करेंगे। अगर वो कहेंगे कि आगे बढ़ना है तो हम आगे बढ़ेंगे, अगर वो कहेंगे कि हमें यहीं पे बैठना है तो हम यहीं पे डटे रहेंगे। तो मतलब ट्रैक्टर रैली जो निकलेगी उसी के तहत आज आप टीकरी बॉर्डर से आगे सिंगू बॉर्डर तक जा रहे हैं? हाँ, तो जो 26 को ये कह रहे हैं कि परेड होने का है, देखिए उसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं कह सकता क्योंकि वो हमारे लीडर तय करेंगे कि उसका क्या शेड्यूल है। लेकिन जो आज हम जा रहे हैं कि ये इसका आप ट्रेलर कह सकते हैं कि जो हम टिकरी से सिंगू बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं। तो मोदी सरकार के बारे में आपका क्या कहना है? जो तीनों कानून लेकर आई है वो कह रही है कि ये किसानों के हितैषी हैं, आप कह रहे हो कि ये किसानों के हितैषी नहीं है, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए मोदी सरकार तो कह रही है कि ये किसानों के लिए है, पर मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि जब ये इन्होंने तीनों बिल पास किए थे तब वहाँ पे कौन किसी किसान आगू को या किसी जत्थेबंदी से इन्होंने किसी से नहीं पूछा। इन्होंने वहाँ पार्लियामेंट में पास कर दिए संसद में, तो इन्होंने किसी से नहीं पूछा। एक बार कम से कम जो खेत में काम करते हैं उससे पूछना तो चाहिए कि हाँ आपको ये चीज़ चाहिए या ना चाहिए। इन्होंने सिर्फ दे दिए। अगर इतनी तादाद में लोग इसका विरोध कर रहे हैं तो कुछ तो है ना। अभी वो वहाँ पे बैठे हैं लेकिन वो एक बार भी नहीं हमारी बात सुन रहे। वो वहाँ पे उनके खेती बाड़ी मंत्री तोमर साहब हैं उनको भेज देते हैं और एक दूसरे हैं। अगर उनके जो हमें लग रहा है कि उनके हाथ में कुछ नहीं है तो मोदी जी क्यों सीधे आके बात नहीं करते? वो कहते हैं कि जो बीजेपी की सरकार है वो जनता की है। अभी जनता तो सड़कों पे है तो वहाँ पे आके क्यों नहीं बात करते? इसमें कौन सी बड़ी बात है? सरकार से लोगों से सरकार नहीं है, लोग सरकार को बनाते हैं, तो उनको सड़क पे आके हमारी बात सुननी चाहिए एटलीस्ट कि हमें हमारी क्या मांगे हैं और उसको पूरा करना चाहिए। तो जो मोदी सरकार है वो तो ये भी कह रही है, मोदी सरकार के कई नेता हैं, बीजेपी के कई नेता हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो ये किसानों का धरना चल रहा है इसके अंदर कई आतंकवादी हैं, किसी के पास AK-47 लेकर बैठे हैं, ये इनको फंडिंग मिल रही है बाहर से, इनका खाना पीना अलग हो रहा है, ये मेला लगा कर बैठे हैं। इस पर क्या कहेंगे? देखिए सबसे पहली बात वो कहते हैं आतंकवादी। आपको लगता है हम तो आप यहाँ पे क्यों बैठे आकर हम उनको लगता है कि हम आतंकवादी हैं? देखिए भाई हम बहुत ही ज़्यादा शांतमयी जो धरना चल रहा है वो कर रहे हैं, लेकिन ये हमको उकसा रहे हैं कि इनको उग्रवादी, कोई नस्लवादी कह रहा है, कोई आतंकवादी कह रहा है, तो ये चाहते हैं कि ये हम इसको उकसाएं और ये कोई गलत कदम उठाएं। लेकिन हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। उनको जो कहना है वो कहें। हम इसी तरह शांतमयी ये धरना जो है हमारा चलता रहेगा। हम किसी से कुछ नहीं कहते। हमारा जो खाना पीना है वो पीछे हमारे पंजाब से आ रहा है और वो जो बाहर NRI हमारे भाई बहन हैं वो हमें भेज रहे हैं वहाँ से, क्योंकि हमारे जो NRI भाई हैं वो पिछले 40-50 सालों से बाहर कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड सभी जगह पे हैं, तो वो हमको सपोर्ट करते हैं। तो उनकी वजह और जो हमारे पीछे पंजाब में लोग हैं वो हमें खाना भेजते हैं, इसलिए हम जहाँ पे खाना खाते हैं। हम जहाँ से किसी से कुछ नहीं लिया है। हमारे साथ इसी ट्रैक्टर पर एक और युवा किसान हैं, मैं उनसे भी पूछना चाहूँगा कि अगर आज भी बात नहीं बनती तो आगे क्या करेंगे आप? आगे हम 26 तारीख की वेट कर रहे हैं। हमारे नेता जब हमें कहेंगे आगे बढ़ने के लिए हम तो आगे बढ़ेंगे, अगर कहेंगे यहीं बैठना है यहीं बैठेंगे। उनको फॉलो करेंगे। हम तो उनके साथ हैं हम पूरी तरह से। 10 दिन हो गए हमें आए को यहाँ आए को। तो मोदी सरकार को, बीजेपी को आप कोई संदेश देना चाहते हैं हमारे माध्यम से? हम तो उनको यही कहेंगे कि मान जाएं तो अच्छा है। हमारा भी भला होगा, उनका भी भला होगा। बस तो उनका तो भला ही भला है, आप ही का थोड़ा मतलब सर्दी में, भरी सर्दी में आप हैं, बरसात में आप हैं, वो तो उनका तो भला ही भला है।
उनमें उनमें जो नेता सभी नेता हैं उनमें कोई किसान नहीं। अगर एक भी किसान होता तो ये रूल बनाते ही ना, वो ये लागू ही ना करते। जो एक भी किसान होता उनको समझाता कि ये ऐसा ऐसा होता है किसानों के साथ। उनको कुछ मालूम नहीं है किसानों के बारे में। वो सिर्फ बड़े बड़े होटलों में रहना, अपनी ऐश करना जानते हैं, अंबानी अडानी के साथ रहते हैं वो, और कोई बात नहीं है उनमें। तो ये थे टिकरी बॉर्डर से एक ट्रैक्टर पर सवार होकर कुछ युवा किसान सिंगू बॉर्डर की तरफ जाते हुए, और ये चाहते हैं कि सरकार तीनों कृषि कानून वापस ले। कैमरा पर्सन सत्तार खान के साथ मैं अभिषेक गौतम, पॉलिटॉक्स न्यूज़, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।